हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन सब्जेक्ट बायोस्टैटिस्टिक्स। सो फर्स्ट, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? A measure of central tendency is a single value that attempts to describe a set of data by identifying the central position within that set of data. That means अगर कोई हमारे पास डेटा है तो उसमें उसको अगर डिफाइन करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल वैल्यू how we can identify so such a figure that is known as a central tendency or such a calculation that is known as a central tendency. Then central tendency that is also called as measure of central location. See, आपने बहुत बार सुना होगा mean, median, mode. These are the measurement of central tendency. Mean often it is also known as a average is most likely the measure of central tendency. But there are others such as the median and mode. They are also the measures of central location, or we can say the central tendency. Now mean that is also known as the average. उसको हम एवरेज भी बुलाते हैं। एवरेज इट इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब वॉल ऑफ फिगर। देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा है या फिर फिगर है तो उसको डिफाइन करने के लिए वन सिंगल फिगर अगर सिंगल वैल्यू अगर हम डिस्क्राइब करते हैं और इसको अगर हम मीन फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पे हम मीन भी बुला सकते हैं या फिर एवरेज भी यहाँ पे बुला सकते हैं। द अदर वैल्यूज देयर आर द मीडियन एंड मॉड। नाउ व्हाट इज द यूज, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, और या फिर हम बोल सकते हैं विच आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो फर्स्ट वन, टू प्रेजेंट ब्रीफ पिक्चर ऑफ डेटा। कोई डेटा हमारे पास है, उसका कोई पिक्चर क्रिएट करना है। इट हेल्प्स इन गिविंग अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द एंटायर डेटा। देन एसेंशियल फॉर कंपैरिजन, if you want to go for the comparison in between two data set, it helps in reducing the data to a single value which is used for doing comparative studies. Help in decision making. Most of the companies, देखिए बहुत सारी कंपनी है, they are measuring the central tendency to plan and develop their business economy. बिजनेस को आगे कैसे डेवलप करना है उनके लिए डिसीजन अगर कुछ लेना है तो they are also finding, they are also dependent on the central tendency. Then formulation of the policy. Many government rely on this medium while forming any policies. Government agencies they are on the basis of central tendency they are deciding their policies. So these are the main objective of the measure of central tendency. Now we will see the types of central tendency. First we can define or we can divide the central tendency, also known as the average. We can divide it in mathematical and positional. So in mathematical it can be divided in arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. Again the arithmetic mean that is divided in a simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean. Then positional central tendency value that is divided into two category. First one that is the median and second one is the mode. In this video we will discuss, ये वीडियो में हम यहाँ पे एरिथमेटिक मीन उसके जो दो टाइप है सिंपल एरिथमेटिक मीन एंड वेटेड एरिथमेटिक मीन इसको हम कवर करने वाले हैं. सो फर्स्ट वी विल सी एरिथमेटिक मीन. Arithmetic mean is the most commonly used measure of the central tendency. Its value is obtained by dividing the sum of the value of various item in a series by the number of total item. देखिए अगेन arithmetic mean है वो डिवाइड होगी सिंपल arithmetic mean एंड weighted arithmetic mean. देखिए जनरली मीन हमने बहुत जगह पे हमने अगर फार्मेसी में ही हम कंसीडर करें तो सेम वन से आप बहुत सारी जगह पे यूज कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है. और इसके दो टाइप है एरिथमेटिक मीन के, सिंपल एरिथमेटिक मीन और वेटेड एरिथमेटिक मीन. नाउ सिंपल एरिथमेटिक मीन, द सिंपल एरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज द नंबर ऑफ वैल्यू इन द सेट. इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार. This is known as a x bar or AM. AM that means arithmetic mean. Calculation of mean in an individual series or ungrouped data. There are three method. देखिए यहाँ पे individual series या फिर ungrouped data में अगर हमें calculate करना है then there are mainly three method. So in case of group data also there is a three method. So first method that is the direct shortcut method
एंड स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए बायोस्टैटिस्टिक में हमेशा क्या है कि अगर आप डेफिनेशन देखोगे, यहाँ पे डेफिनेशन है तो थोड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन जब भी आप इक्वेशन देखोगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा। तो वी विल डायरेक्टली गो फॉर द इक्वेशन। सो फर्स्ट वन, डायरेक्ट मेथड, let x1 x2 xn up to xn be the n values of the variable x, then the arithmetic mean, how we can write arithmetic mean or x bar, that is the sum of the value, that means x1 plus x2 plus x3 up to xn divided by total number of the value that is n, मतलब कितना वैल्यू आपको दिया है, कितना डेटा आपको दिया है। सो arithmetic mean that is equals to सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो ये क्या है कि डेफिनेशन में अगर आप देखोगे तो शायद समझ में ना आए, लेकिन इक्वेशन आप जब भी देखोगे तो क्या है मीन और कैसे फाइंड आउट होता है ये इजीली समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। द बर्थ वेट ऑफ द 6 बेबीज आर 2.0, 2.4, 2.6, 3.1, 3.4 एंड 2.5 किलोग्राम। नाउ फाइंड द मीन बर्थ ऑफ द वेट। नाउ वी हैव arithmetic mean, now we have the equation sigma x divided by n, the value of n different total value of n, मतलब कितना डेटा है हमारे पास 6 है, 6 number of data we have present. Now the value of x1 x2 we can categorize x3 x4 x5 and x6। तो इक्वेशन क्या है, x bar is equals to sigma x, तो यहाँ पे जितना भी डेटा है उनका समेशन करेंगे और इट विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है 6 है। सो द समेशन ऑफ दिस डेटा दैट इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 2.667 किलोग्राम। तो बहुत ही इजी है, एरिथमेटिक मीन है, बहुत ही इजी है। एक दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे, द हाइट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स आर इन सेंटीमीटर 160, 162, 175, 158, 156 एंड फाइंड द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे जितना भी डेटा हमको दिया है उनका समेशन करना है। अगेन वेरी सिंपल, एंड दैट शुड बी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेटा, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर कितना दिया है, ये 10 है। देखिए यहाँ पे खास ध्यान रखिए, ये अनग्रुप डेटा है, हमें डायरेक्टली डेटा दे दिया गया है, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर क्लास इंटरवल ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सो नाउ द ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ द एक्स बार दैट विल बी 167.7 सेंटीमीटर। देन सेकंड मेथड, देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड भी इसको बोलते हैं इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा। सो सेकंड मेथड दैट इज द शॉर्टकट मेथड, am that is equals to x bar is equals to a plus sigma d divided by n। देखिए यहाँ पे नई चीज है, that is the a, x bar that is the arithmetic mean, d second one new thing that is the d that is the deviation is equals to x minus a है यहाँ पे assumed mean है, ये हमें एजम्पशन करना है। हमारे पास अगर मीन नहीं है डायरेक्टली तो हमें जो भी डेटा हमारे पास है उसमें से एक एज्यूम करना है डेटा, देन वी हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम द एक्स में से माइनस करना है, तो जो भी वैल्यू मिलेगी दैट विल बी dx, दैट इज नोन एज अ d, एंड n दैट इज द नंबर ऑफ द डेटा, सिग्मा d दैट इज द सम ऑफ द डेविएशन। नाउ वी विल सी वन ऑफ द एग्जांपल। देखिए एग्जांपल करने से ये सभी डेटा क्लियर हो जाते हैं या फिर जो भी इक्वेशन है वो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, फाइंड द अरिथमेटिक मीन इफ x इज इक्वल टू 101, 106, 125, 150 एंड 110। नाउ वी हैव टू प्रेडिक्ट वन ऑफ द एज्यूम्ड मीन। तो हम यहाँ पे जनरली जो भी डेटा है उसमें से एक सेंट्रल वैल्यू को डिसाइड करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पे 110 को एज्यूम्ड मीन कर लिया, और टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं हमारे पास, तो कि 5 डेटा है हमारे पास, तो n is equals to 5. Now d is equals to x minus a, that means 101 minus 110, it gives minus 9, this gives minus 4, then 125 minus 110, it gives 15, 150 minus 110, 40, and accordingly 110 minus 110, it gives 0. Now we have to go for the sigma d, that means we have to go for the summation। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस पहले यहाँ पे 40 प्लस 15 कर लीजिए, उसमें से डिडक्ट कर दीजिए 9, उसमें से 4 डिडक्ट कर दीजिए, तो जो भी हमारे पास डेटा आएगा दैट इज इक्वल्स टू 42। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन am इज इक्वल्स टू x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डिवाइडेड बाय n ऑन द बेस, अगर यहाँ पे ये इक्वेशन पे हम
पुटअप करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास है एज्यूम्ड मीन 110, दूसरी वैल्यू है 42 सिग्मा डी 42 एंड टोटल नंबर ऑफ डेटा वी हैव दैट इज द 5। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 118.4। देखिए ये एक टेक्निक है, दूसरी एक टेक्निक है, आप डायरेक्ट मेथड से जाओगे तो भी यही रिजल्ट आएगा। देन थर्ड टेक्निक दैट इज द स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए बहुत बार ये सब टेक्निक इसलिए यूज होती है, अगर डेटा हमारे पास ज़्यादा है तो ये टेक्निक यूज करनी बेहतर है। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी डैश एक्स divided by n into I. X bar again there is arithmetic mean, A there is the assumed mean. Now we know very well about the assumed mean. Assumed mean के बारे में अभी हमें पता है, n है ये total number of data है, sigma d that is the sum of the deviation and I that is the class interval। देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ है that is the I that is known as a class interval। देखिए अगर फिर से यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आई को कैसे यूज करना है। नाउ हियर द फॉलोइंग डेटा वी हैव 20, 40, 60, 80, 100। फर्स्ट वी हैव टू एज्यूम वन थिंग दैट इज द एज्यूम्ड मीन दैट इज इक्वल्स टू 60। यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू ऑलमोस्ट 60 आ रही है, तो यहाँ पे ए दैट विल बी इक्वल टू 60। ये हम कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। देन आई इंटरवल, क्लास इंटरवल दैट इज, देखिए यहाँ पे इंटरवल 20 का इंटरवल है, तो आई दैट विल बी इक्वल्स टू 20। नाउ वी विल फाइंड द डेविएशन dx इन दिस टेबल। वी विल फाइंड द डेविएशन 20 माइनस 60 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 40। लाइकवाइज यहाँ पे डेविएशन अगर फाइंड आउट करेंगे तो माइनस 20 आएगा, यहाँ पे 0, 20, 40। देन स्टेप डेविएशन, देखिए यहाँ पे स्टेप डेविएशन ये एक नया स्टेप आया है, dx डिवाइडेड बाई आई। dx डिवाइडेड बाई आई क्या है यहाँ पे, क्लास इंटरवल, तो -40 डिवाइडेड बाई 20, -40 डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। दिस विल बी d डैश x, दिस विल बी द d डैश x। देन लाइकवाइज -1 यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे अगर सिग्मा d डैश x करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू, हमारे पास डेटा ऐसा है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, सीधी 0 वैल्यू आएगी। नाउ यही चीज को अगर हम इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d डैश x। देखिए d डैश x अभी हमारा क्लियर हो गया कि d डैश x क्या है, डिवाइडेड बाय n इंटू आई। सिग्मा d डैश x 0 आया है, एज्यूम्ड मीन हमने 60 रखी है, n है 5 डेटा है हमारे पास, इंटू आई दैट इज द 20। तो इसका अगर हम कन्वर्ट करेंगे कॉमन तो क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 60 आएगा। So this is for the step deviation method in ungrouped data. Then simple arithmetic mean in group data. Group data हमारे पास है, continuous series है। So how to calculate this? First one, the value of each item that will be multiplied by its frequency and take its total value and say this is the sigma fx. Sigma fx numerator में रखेंगे। Then make sum of all frequencies, it means sigma f, that will be the denominator, and using this formula we can find out the x bar is equals to sigma fx divided by sigma f. This is direct method। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, एज दैट इज इन द क्लास ऑफ 18 to 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 to 32, 33 to 35। तो यहाँ पे पहले हम टेबल बनाएंगे, टेबल में क्या करेंगे कि क्लास इंटरवल पहले लिख देते हैं, देन मिड वैल्यू हियर we have to find out in group data, we have to find out the mid value। तो यहाँ पे mid value क्या आएगी, mid value that is equals to lower limit plus upper limit divided by 2। तो यहाँ पे हर एक में हम mid value find out करेंगे, यहाँ पे 19, 22, 25, 28, 31 and 34। then frequency क्या दी है हमें, 18, 20, 32, 7, 2, 1। then we will find out the sigma f total of the frequency that will be 80। then we have to find out the f into x, x वैल्यू यहाँ पे मिड वैल्यू हमारे पास है एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, दैट वी विल फाइंड आउट ओवर हियर एंड वी विल गो फॉर द समेशन ऑफ f into x। so sigma fx is equal to 1874 and sigma f that is equals to 18। now we will put this value in the equation, mean is equals to sigma fx divided by sigma f। यहाँ पे हम पूरा वैल्यू जो पुटअप करेंगे तो सीधा हमें यहाँ आंसर मिलेगा 23.4 ईयर्स। तो ये क्या हुआ, ग्रुप डेटा है हमारे पास, ठीक है।
हमारे पास ग्रुप डेटा है, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिए गए हैं, इसलिए हमें एफ फाइंड आउट करना पड़े एफ इंटू एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एक्स क्या है यहाँ पे मिडल वैल्यू, तो मिडल वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो दिस इज डायरेक्ट मेथड। देन शॉर्टकट मेथड सेम है जैसे अनग्रुप डेटा में था, वही है। हियर चूज द एज्यूम मीन चूज करना है, कैलकुलेट द डेविएशन dx इज इक्वल टू x माइनस ए, multiply deviation and its frequency, then obtain the sum total, it means sigma f dx we have to obtain, and using the formula we have to calculate the mean, x bar is equals to a plus sigma f into dx divided by sigma f. Again we will take the example, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर हो जाता है। कैलकुलेट, सेम डेटा हमने यूज किया है, प्रीवियस एग्जाम्पल में जो डेटा था वही यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो पहले क्या किया हमने, क्लास इंटरवल है, मिड वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए, एफ की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दी गई है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू 80। नाउ हमें यहाँ पे एक एज्यूम मीन फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पे एज्यूम मीन एजम्पशन हमने किया है ये वैल्यू 28, ठीक है, 28 की वैल्यू हमने एज्यूम मीन रख दी। अब हम फाइंड आउट करेंगे dx 19 माइनस 28 मतलब x माइनस ए, dx इज इक्वल्स टू x माइनस ए, तो यहाँ पे 19 माइनस 28 तो क्या आएगा -9, लाइकवाइज 22 माइनस 28 तो -6, 25 माइनस 28 -3, 28 माइनस 28 0, 31 माइनस 28 3 एंड 34 माइनस 28 6, तो ये हो गया dx। अब हम फाइंड आउट करेंगे f इंटू dx, f की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड dx यहाँ पे है, मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे तो ये डेटा हमारे पास आएगा। और लास्ट में हमें क्या करना है, सिग्मा एफ dx, इसका सबका समेशन करना है, टोटल करना है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। देन वी हैव टू पुट द सेम वैल्यू, ये इसी वैल्यू को हम रख देंगे जो भी इक्वेशन हमारे पास है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ dx डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। यहाँ पे नेगेटिव साइन को कैरी करना पड़ेगा, 366 डिवाइडेड बाई 80, तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी 23.4। देखिए प्रीवियस एग्जांपल में भी सेम रिजल्ट आया था, ठीक है, ये भी डायरेक्ट मेथड थी, डायरेक्ट मेथड में भी रिजल्ट यही आया था 23.4। सेम डेटा वी हैव टेकन, तो ये डेटा में भी रिजल्ट, देखिए टेक्निक चेंज हो रही है लेकिन रिजल्ट वही आएगा, मतलब मीन की वैल्यू सेम रहेगी। देन स्टेप डेविएशन मेथड, अगेन इन दिस स्टेप डेविएशन मेथड we have to calculate we have to set one assumed mean, then calculate the deviation, calculate step deviation dx dash is equals to dx dash divided by I that is the class interval, multiply step deviation with its frequency, that means f dx dash, then take the sum of f dx dash as a we get sigma f dx dash, then finally we have to use this formula, x bar is equals to a plus sigma f dx dash divided by sigma f into I that is the class interval. Again we will take the example, देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग है example, from the following distribution of mark obtained by 50 student in a quantitative method calculate arithmetic mean। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है इस तरीके से भी हम डेटा दे सकते हैं, marks that is obtained more than 10, number of student 50, more than 20 46, more than 30 40, more than 40 मार्क्स 20 स्टूडेंट को आए, मोर देन 50 मार्क 10 स्टूडेंट को आए, मोर देन 60 मार्क 3 स्टूडेंट को आए। तो यहाँ पे जो भी है हमारे पास डेटा वो क्यूमुलेटिव फॉर्म में है, तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओवर हियर द क्लास इंटरवल दैट इज द 10। देखिए यहाँ पे मालूम पड़ता है क्लास इंटरवल 10 का है एंड द नंबर ऑफ डेटा, टोटल डेटा कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 50 है, तो जितने भी टोटल स्टूडेंट है वो सबको मार्क कितना है, सभी को 10 से ज्यादा है। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा और क्लास इंटरवल एक बनाना पड़ेगा, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, लाइकवाइज द लास्ट क्लास इंटरवल दैट विल बी 60 to 70। तो सबसे पहला डेटा क्या है, तो यहाँ पे 3 है, मोर देन 60 यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, देन मोर देन 50 तो ऑलरेडी हमने 3 स्टूडेंट को यहाँ पे गिनती कर ली है, तो अभी जो यहाँ पे फिगर दिया है उसमें से 3 को डिडक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रखेंगे। देन मोर देन 40 के लिए हमारे पास 20 यहाँ पे दिया है,
तो उसमें से 10 को डिडक्ट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे करेंगे। तो लाइकवाइज जो लास्ट डेटा हमारे पास है तो यहाँ पे मोर देन 10, तो मोर देन 10 में 50 माइनस 46 करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 4 आएगी। फिर यहाँ से सब सेम है, मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मिड वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कोई एक को एज्यूम्ड मीन हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन है। देन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, डेविएशन दैट इज इक्वल्स टू x माइनस ए, दैट मीन्स 15 माइनस 35, यहाँ पे जो आंसर आएंगे। देन उसके बाद स्टेप डेविएशन फाइंड आउट करना है, ये एक नया स्टेप डेविएशन में आएगा। तो स्टेप डेविएशन में क्या करना है, dx डिवाइडेड बाई आई, dx मतलब ये डेविएशन है, डिवाइडेड बाई आई क्या है, क्लास इंटरवल है, मतलब -20 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10 आएगा, 10 हमारा क्लास इंटरवल है, तो कितना आएगा वैल्यू -2, यहाँ पे -1 आएगा, 0 1 2 3 लाइकवाइज। देन वी हैव टू गो फॉर द f इंटू dx डैश, f फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, फिर dx डैश यहाँ पे है dx डैश, ठीक है। तो 4 माइनस 2 दैट इज -8, 6 इंटू -1 -6, likewise we will carry out this multiplication, then afterwards the summation of f dx dash that is equals to, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा दिख रही है तो जो भी साइन आएगा लास्ट में वो पॉजिटिव आएगा, एंड सिग्मा f that is equals to 50। नाउ वी हैव द इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, ये इक्वेशन का यूज करेंगे, यहाँ पे सभी वैल्यू है पुट अप करेंगे। एज्यूम मीन दैट इज द 35, दिस वैल्यू दैट इज द 19 डिवाइडेड बाई 50, क्लास इंटरवल है वो 10 है, तो टोटल आंसर आएगा 38.8। तो ये क्या है, प्रैक्टिस करेंगे, जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। देन वेटेड अरिथमेटिक मीन, देखिए यहाँ तक हमने जो कंसीडर किया वो सिंपल अरिथमेटिक मीन थी, अभी हम कंसीडर करेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन। Weighted mean is an average computed by giving different weights to some of the individual values. If all the weights are equal, then the weighted mean is the same as arithmetic mean. देखिए weighted arithmetic mean में थोड़ा डिफरेंस ये है सिंपल arithmetic mean में से, कि कई बार ऐसा होता है हमारे पास मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आता है तो कई बार हमारे पास, जैसे हमारे फार्मेसी में हम कंसीडर करें इंटरनल एग्जाम रहता है और एक्सटर्नल एग्जाम रहता है। इंटरनल एग्जाम में 20 मार्क की रहती है, एक्सटर्नल 80 मार्क की रहती है। अगर कोई स्टूडेंट को आउट ऑफ 20 10 मार्क्स आए और एक्सटर्नल एग्जाम में आउट ऑफ 80 40 मार्क्स आते हैं, तो अगर इसका एवरेज कंसीडर करना है तो 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का वेटेज अलग अलग रहता है। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन का मेन यूज ये है कि जहाँ पे वेटेज अगर कंसीडर हो रहा है तो वेटेज को कंसीडर करके यहाँ पे अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अगर हम 20 + 80 यहाँ पे कंसीडर करें तो 20 मतलब वेटेज दैट इज 2 एंड 80 मार्क्स है, किसी को आए हैं 80 मार्क कंसीडर करें तो वेटेज वहाँ पे 8 का रहेगा। तो यहाँ पे ये इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए वेटेड अरिथमेटिक मीन उनको डिस्क्राइब किया है, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे वेटेड मीन इज एन एवरेज कंप्यूटेड बाय गिविंग डिफरेंट वेट टू सम ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू। उनका जो भी वेटेज है उनके मुताबिक हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इफ ऑल द वेट्स आर इक्वल, ऑल द वेटेज दैट इज इक्वल, देन द वेटेड मीन इज द सेम एज द अरिथमेटिक मीन। इट रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ अ गिवन डेटा। द वेट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। देखिए वेटेज दे रहे हैं तो किसी को नेगेटिव वेटेज हम नहीं दे सकते, सब में भी 0, कुछ चीज को हम 0 वेटेज दे सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं दे सकते, बट नॉट ऑल ऑफ देम, सभी को 0 भी नहीं दे सकते। सिंस डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। डिवीजन जो हम मतलब डिनोमिनेटर में हमें जो भी रखना है सिग्मा w, ये कभी 0 नहीं हो सकता। नाउ द इक्वेशन वी हैव x बार दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा w इंटू x डिवाइडेड बाय सिग्मा w। x bar that is equals to weighted arithmetic mean, w है weighted assigned to different items. In case of frequency distribution f1 f2 up to fn are the frequencies of the variable values, then x1 x2 and xn respectively, then the weighted arithmetic mean it will be given by, देखिए अगर frequency distribution है तो weighted arithmetic mean के लिए the equation will be sigma w fx divided by sigma w. We will take one example for this. Arithmetic mean for the following data we have to find out. First we have the value of x 10 20 25 15 20, then w 2 5 1 7 6 sigma w that is equals to, we have to go for the summation
21, then we have to find out w into x, and then we have to find out समेशन टोटल इनका करना है, और जो भी हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन वेरी सिंपल है, सिग्मा w इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा w। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके मुताबिक हमें जो दूसरा इक्वेशन हमने देखा था वो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये थे वेटेड अरिथमेटिक मीन। So in this video we discuss about the central tendency, objective of the central tendency, why it is required, central tendency की क्या जरूरत है। जनरली हमने मीन, मीडियन, मोड ये सभी सेंट्रल टेंडेंसी में आएगा, तो इसकी क्या जरूरत है। देन वी डिस्कस about the classification, but here we discuss about the simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean। simple arithmetic mean में हमारे पास दो टाइप का डेटा रहेगा, ग्रुप डेटा, नॉन ग्रुप डेटा। तो दोनों के लिए सेमी टेक्निक है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। सो दीज आर द अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी इन दैट अरिथमेटिक मीन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे एक दूसरा एक वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा जिसमें एक एग्जाम्पल सेटअप करके रखूंगा, फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट एग्जाम्पल, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।